dealing with part 3 of the Indian Constitution, the definition of state becomes very, very important. Now the question arises, what is the exact structure of a state? In my last class, I told you that once you read Article 12, what it says, and you should listen me very carefully along with your constitution. Article 12, it is talking about the definition of the state. And what it is saying in this part, unless the context otherwise requires, the state includes the government and parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. So it means it is very much clear. In last class also I told you this thing, that the basically under Article 12 they are not defining the characteristics of the state. What they have done, they have made certain illustrations. And what are those illustrations? Central government and parliament, state government and state legislature, local authorities or other authorities within the territory of India and under the control of the government of India. So within the territory of India, and if they are outside India but under the control of the government of India, then too they will lie under the category of the state. This is the very, very important thing. So in my last class, I told you about the different, theories about the state. तो उसमें मैंने तुम लोगों को कई सारी चीजें बताई थी कि क्या स्टेट का फॉर्म होता है. इसमें one thing I am very much important which I am going to mention here, because constantly there are it is said that the government is not performing its duty properly, there is no proper democracy and all. So basically when we use the term democracy, the democracy may be direct and indirect. And direct means where the people are directly going to participate in the governance. Indirect means the people are going to participate in the governance through the elected representative. Like India. India is an indirect democracy. Indirect democracy can be further divided into parliamentary democracy and presidential form of the government. That is altogether a different thing. But remember, in the case of direct democracy, you will find this kind of democracy only in the countries which are very small. Because in a huge country like India, the participation of 135 crore people in the governance, it is not possible. So remember, before the arrival of the Britisher, and this is something which is very important, because there are two more terms which are used. The first is the political democracy and the second one is the social democracy. The meaning of social democracy is how people are going to participate in the governance. So remember, as I told you that in India, we follow the concept of indirect democracy. When Britishers came to India, and even after that, some people were totally against the present model of the governance. Perhaps you are not aware what model was earlier existing in India. तो इसको लेकर के मैं तुम लोग को थोड़ी सी चीजें बताती हूँ ताकि हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि हमारे में कमी कहाँ पे आ रही है. तो सोशल डेमोक्रेसी में when the Britishers arrived to India, at that point of time India was divided into different princely states. राज्य थे, बड़े राज्य थे, छोटे राज्य थे, लेकिन जो मैंने तुम लोग को बताया था कि जियोग्राफिकली द डेफिनेशन ऑफ इंडिया is prescribed from Himalaya to Hind Mahasagar. ये पूरा भारत खंड था. तो इसमें there were different kind of states. सोशल डेमोक्रेसी में उस समय क्या होता था, मैकॉले ने भी इसमें बहुत कुछ लिखा है, and he has written certain letter to his father where he is saying कि the education system of India is commendable. शायद आप लोग को पता नहीं होगा कि जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ आए नहीं थे, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, at that point of time in the United Kingdom, education was not compulsorily available to every student. It was available only to certain elite class. लेकिन जब वो मैकॉले इंडिया आता है तो इंडिया में उसने he has mentioned that there are around 10 lakh gurukuls across the country. और उसमें क्या होता है, there is no caste barrier, there is no religion barrier in terms of teachers as well as in the terms of students. वहां पे एक important चीज क्या थी कि वहां पे चाहे स्कूल हो, चाहे आपके वाटर बॉडीज हो, चाहे आपकी सड़कें हो, the people used to take care of all those things. The role of the king was not very broad. It was very limited in certain sense, like to defend. रक्षा करना ये मेन काम था
collection of taxes, this was the duty of the state, duty of the king. But remember, most of the things at the local level, they used to be done by the local people. तो जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था. सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी. एंड मे बी आप में से बहुत सारे लोगों का रूरल बैकग्राउंड होगा, हर किसी का कोई गांव, हालांकि अब गांव में भी चीजें कम हो गई हैं, पर वहां पे आप सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देखो कितना तगड़ा था कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती थी तो उसके कफन का पैसा गांव का हर व्यक्ति देता था. क्यों देता था? जस्ट टू शो अ सॉलिडेरिटी कि ये हमारे घर का कोई मरा है, क्योंकि ही बिलोंग्स फ्रॉम आवर विलेज. इसी तरीके से अगर किसी लड़की की शादी होती थी या किसी घर की, अभी भी ये चीज चलती है यहाँ पे, तो उसको पूरी गांव की लड़की माना जाता था. और जब उसकी शादी होती थी तो गांव का हर व्यक्ति उसकी शादी में कंट्रीब्यूट करता था. अगर वो पुअर है तो भी, नहीं है तो भी, फिजिकल प्रेजेंस से करेगा, काम करके करेगा, पैसे से करेगा, पर वो करेगा. So the concept of the social democracy or the involvement of the people in the democracy, that was very strong at that point of time. When the Britishers came India, how they destroyed us? पहला जो उनका अटैक था वो गुरुकुल्स पे था. Because you know what they were believing? They were believing that unless and until we are going to control these gurukuls or the education system, we cannot control Indians. तो सबसे पहले इन्होंने गुरुकुल को बंद किया और इन्होंने पेड एजुकेशन सिस्टम लागू किया. दूसरा इन्होंने काम किया था वाटर बॉडीज को रेगुलेट करने का. पानी, आप लोग का जिनका गांव का बैकग्राउंड होगा, आप लोगों को मालूम होगा, हम लोगों ने तो बचपन में देखा है, गांव में तालाब होते हैं, पोखरे होते हैं, और ये तालाबों का देश है. आप किसी भी एरिया में चले जाइए, अब तो लोगों ने पार्ट पार्ट करके उसको भी कब्जे में ले लिया है. अदरवाइज व्हाट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ दीज पॉन्ड्स? द वाटर शुड बी फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन, आइदर द एनिमल और द ह्यूमन बीइंग, और द पर्पस ऑफ इरिगेशन और फॉर द पर्पस ऑफ टूरिस्ट ट्रेवलर्स, जिसके लिए भी, जिसको भी चाहिए हो, पानी फ्री में अवेलेबल हो. इन लोगों ने सबसे पहले इन दो चीजों को पेड किया था. एजुकेशन को पेड जो इन्होंने किया उसको हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं. When they adopted their model of governance, and what is their model? Everything should be done by the government. Why everything should be done by the government? Because they want to control everything. So when the Britishers adopted this model, and even subsequently Ravindranath Tagore is strongly, and many other people, even Gandhi was not in the favor, very much favor of this idea. Why they were opposing? What they are saying कि नहीं, गवर्नेंस में लोकल लोगों को, the people should contribute for each and every big and small thing. They should not be dependent on the government. हर चीज सरकार करे, हमें इस चक्कर में पड़ना नहीं है. सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी ले, और जहां पे सोसाइटी का जो रोल पहले था वो उस हिसाब से रोल को करे. सो दैट देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडिया. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यू नो व्हाट इज इन द प्रेजेंट फॉर्म, every responsibility is going to be taken by the state. And this is the reason that when you read the definition of the state, तुमको वहां पे क्या मिलता है? वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉडीज को ही स्टेट मानते हैं. And what is the basic purpose of defining state in this way? The state will have to perform all sorts of functions, and if there is any problem, or if because of any reason the state is not able to perform its duty, then in that circumstances the citizens must have right to approach to the high court or to the supreme court for the protection of their right. तो आज की तारीख में तुम देखो, चाहे नाली बनाना हो, चाहे सड़क बनाना हो, चाहे आपका स्कूल चलाना हो, हॉस्पिटल चलाना हो, everywhere the government system is involved. So remember this idea of political democracy, this is not very good. अब यहाँ पे अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को आइडिया होगा, in certain parts of the country the people are doing a tremendous work, especially in tribal areas. आपके तालाब खुदवाना, सड़कें, लोगों ने खुद ये काम लिया, और जहां पे लोगों ने खुद ये काम किया है वहां पे एट दोस प्लेसेस द पीपल आर डूइंग वेरी गुड. तो मैंने आपको बेसिकली एक अंतर बताया कि सोशल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, सोशल डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेशन होता है. और इसीलिए अब फिर से एक बार, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कोविड आया, जैसे यहाँ पे सोशल कांटेक्ट अभी भी इतना तगड़ा है कि यू कैन सर्वाइव इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑड पोजीशंस. पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है कि ब्रिटेन में या अमेरिका में, आपको पहली बात तो ये कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिटिंग सुसाइड, दैट इज इन जापान.
and you know that Japan is a very developed country. Their population is very less and their per capita income is very high. Their life is full of very much good amenities, but the problem is the number of committal of suicide is highest in Japan. The highest number of depressed people that is in America. इंडिया में भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है उसका, या फिर जैसे आपने ब्रिटेन में, आपको मालूम होगा कि वहां पे यूथ को आजकल एक नया काम मिलता है. वो क्या करते हैं, वो आपसे 30-40-100 पाउंड लेंगे और उसके एवज में आकर के आपसे हर घंटे बात करेंगे. सिर्फ बात करने के वो पैसे लेते हैं. सो इट इज बिकमिंग एज इट इज डेवलपिंग एज ए इंडस्ट्री इन यूनाइटेड किंगडम. सो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जब वीक होता है तो फिर इंसान साइकोलॉजिकली किस तरीके से डिप्रेशन में आता है. या तो डिप्रेस होता है या डिप्रेस होकर के सुसाइड करता है. नहीं तो मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि एल्डरली सिटीजन्स को लेकर के वहां पे अब ये चलता है कि यंग लोग जाते हैं 30-40 पाउंड लेकर के उनसे घंटे 2 घंटे बात करते हैं. तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर था, द सोसाइटल स्ट्रक्चर, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. दैट्स व्हाई इन स्टिल इवन प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टाइम, whenever there is any time of crisis, the people support each other, and this social fabric, this is the strength of this country. और यही इसको जोड़ के रखती है कि आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हमसे सामान ले लो, बाद में दे देना. बाहर ऐसा नहीं होता. So there are so many things. But under Article 12 of the Indian Constitution, when we are talking about the government, in this governance model, primarily the people are dependent upon the state. So that's why they have defined the state, and in defining the state they are mentioning some very important parts: central government, parliament, state government, state legislature, local authorities and other authority. Now the question arises, what is the meaning of local authority? So for that purpose I told you in my last class that under section 3 subclause 31 of General Clauses Act 1897 the term local authority has been defined. अब अथॉरिटी में, लोकल में यू कैन वेरी मच अंडरस्टैंड कि लोकल मतलब क्या होता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी? दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो इसमें इन्होंने, जो आप जनरल क्लॉजेस एक्ट देखोगे, इसमें इन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे तुम्हारा पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, ये सारे जो हैं दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द लोकल अथॉरिटी. बट व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? इसमें सिंपल सा एक याद रखना, द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी मीन्स हु आर इन द पोजीशन टू मेक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया और फॉर द पीपल रिजाइडिंग इन अ स्पेसिफाइड एरिया. वो रूल्स बना सकते हैं, जैसे आपका एमसीडी होता है, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, आपके पंचायत होते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होते हैं. दे आर द एग्जांपल ऑफ द लोकल अथॉरिटी. तो इनको कुछ रूल मेकिंग पावर होती है, एंड दिस रूल मेकिंग पावर, आई एम नॉट श्योर वेदर एवर यू आर अवेयर अबाउट द टर्म डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और नॉट, और डेलीगेटेड पावर और नॉट. सो देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ पावर टू these local authority, and this power is delegated to them by the concerned government and the state legislature. So they enjoy their rule making power, and the purpose of giving this rule making power to these local authority is to create a governance which is very smooth. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको कुछ चेंज करना है तो दौड़ के सरकार के पास जाएं और बोले कि आप लेजिस्लेचर में ला करके इसको चेंज करो. बिकॉज रिमेंबर द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस मीन्स there should be minimum interference of the government. जैसे अभी ये मोदी जी बोलते हैं ना कि minimum government and maximum governance. This is the actual meaning of governance. So other, ये जो local authority होती है, local authorities को पावर इसलिए दी गई है ताकि maximum governance हो और minimum government हो. But for the first time there is a case, and the name of the case is Muhammad Yasin versus Town Area Committee. 1952 का जजमेंट है. मोहम्मद यासीन, इसका नाम लिख लेना तुम लोग क्योंकि तुमको बुक्स में नहीं मिलेगा. मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी 1952. In this case, for the first time, the Supreme Court tried to define the characteristic of local authority. उसको डिफाइन करने की कोशिश करी कि लोकल अथॉरिटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. तो उसमें इन्होंने क्या क्या चीजें, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, इसको नोट कर सकते हो तुम लोग. अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस और कॉर्पोरेट बॉडी. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है, इसको जरा तुम लोग ध्यान से समझना. सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, certain bodies are created through a statute and these bodies are known as statutory bodies. जैसे मान लो
तुम्हारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है। जैसे हम लोग मिल करके चाहें कि एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्रिएट कर दें, वी कैन नॉट क्रिएट इट। व्हाई? बिकॉज इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसके अंडर में आएगा? ये पावर मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। पर पावर मिनिस्ट्री ने क्या किया? दे नो दैट दे कैन नॉट परफॉर्म ईच एंड एवरी फंक्शन बिकॉज देन दे आर गोइंग टू बी ओवरबर्डन्ड. So what they have created, they passed a legislation, and through legislation they have created electricity boards. So electricity board in every district. So what will be the function of that electricity board? Electric supply को देखेगा और साथ में आप लोग जो बिल दोगे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दोगे। तो उसका काम क्या है? एक तरीके से वो रेवेन्यू जनरेशन का भी काम करता है। कुछ सब्सिडी पे सरकार देती है तो देती है, बट पैसा लेता है, and in exchange of that they are going to supply you electricity. But how that body is created? That body has been created through a statute. And remember, if a body is going to be created through a statute, that body is known as statutory body, and only the legislature is authorized to create statutory body. So that's why this is the meaning of legal existence or corporate body. The second important thing is it should be legally independent entity, autonomous body जिसको हम लोग कहते हैं ना. And remember, in case of autonomous body, it is not like that they are not under the control of the government. They are under the regulation of the government, they are under the control of the government, but they are not dependent for every big and small thing for the government. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लो एमसीडी को डिसाइड करना है कि भाई इस बार ना हम थोड़ा सा टैक्स ज्यादा लेंगे, तो ये नहीं कि वो दौड़ करके सरकार के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें अलाउ करो. ये अथॉरिटी उनको दे दी गई कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस दे कैन इम्पोज सर्टेन टैक्सेस ऑल्सो. तो लीगली इंडिपेंडेंट एंटिटी का मतलब होता है ऑटोनोमस बॉडी अप टू अ लार्जर एक्सटेंट. जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है. फिर होता है मस्ट हैव अ फंक्शन इन डिफाइंड एरिया. Defined area का मतलब defined, why defined area is very much important? Because the term is local authority, and local authority का मतलब क्या होता है? There should be some local application. तो local area should be identified कि this is the MCD. ये MCD दिल्ली है या दिल्ली MCD 4 हिस्से में बटी हुई है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कितना defined area है. So this defined area is again very much important. Wholly or partly, directly or indirectly इलेक्टेड बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट एरिया. जैसे पंचायत का इलेक्शन होता है, नगर पालिका का इलेक्शन होता है, तो लोकल लोग चुनते हैं, तो छोटे लेवल पे है लेकिन बाय द इलेक्टेड बाय द लोकल पीपुल है. फिर इसमें क्या होता है? बी इंटरेस्टेड बाय अ स्टैच्यू विथ सच गवर्नमेंट टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस एंड ड्यूटीज विच आर नॉर्मली इंटरेस्टेड अपॉन द स्टेट. मतलब स्टेट ने अपने ही रोल को, जैसे मान लीजिए मुझे कहा गया है कि तुम 15 क्लासेस या मान लो 5 क्लासेस तुम एक दिन में लोगे. फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक 5 क्लासेस बिकॉज दिस इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी. तो मैंने क्या किया? मैंने ये बोल दिया कि 3 क्लासेस तो हम लेंगे, बट 2 क्लासेस ना हम किसी और को डेलीगेट कर रहे हैं. तो वो जो 2 लोग क्लासेस ले रहे हैं, दे आर टेकिंग दैट क्लास ऑन बिहाफ ऑफ मी. Similarly, what is happening here, the role is basically identified for the state, but because state is already overburdened, the state has delegated its own role to these local authorities कि मेरी जगह तुम काम करोगे. तो वो हेल्थ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, वाटर सप्लाई हो सकती है, टाउन प्लानिंग हो सकती है. इन चीजों को स्टेट लोकल अथॉरिटीज को डेलीगेट कर सकता है. तो and the last important characteristic of these local authorities are they might have power to raise funds, and raise funds का मतलब ये होता है they can impose certain taxes also. impose भी कर सकते हैं and they have authority to collect it also. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो क्या करता है? वो आपको बिल देगा और बिल देने के बाद वो क्या कहेगा कि सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू पे बिल इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, वो 1 वार्निंग देंगे, 2 वार्निंग देंगे और फिर आकर के आपकी बिजली काट देंगे. तो इनको क्या पावर होती है? ये फंड रेज कर सकते हैं और ये स्टेट के यानी जो सरकार का ऑथराइज्ड वर्क होता है वो उसी को करते हैं. एंड दिस पावर इज वेस्टेड टू देम
थ्रू द स्टेच्यूटरी बॉडी, या अब एक नया एक तरीका आ गया है प्रेजेंट फॉर्म में थ्रू द क्रिएशन ऑफ द कॉर्पोरेशंस। वो कैसे होती है कॉर्पोरेशन का क्रिएशन वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, बट आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल अथॉरिटी। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं वो हम लोग आते हैं firstly what we will discuss, what I will do now, I will discuss the entire thing, then I will break up the things according to your syllabus. ये स्टेट का हमने एक मॉडल देखा। सो रिमेंबर what is the basic difference between the British government and the present government? The main difference is the British government was primarily a police state, but the present government, it is a welfare state. So when we are talking about the police state, the meaning of police state is the primary role of the state is to maintain law and order. But when we are talking about the welfare state, the role of the state has many dimensions. वो सड़क भी बनाएंगे, बिजली भी देंगे, हॉस्पिटल भी क्रिएट करेंगे, आपके हाईवेज भी बनाएंगे, आपके वाटरवेज भी बनाएंगे, एयरपोर्ट भी बनाएंगे, न्यूक्लियर प्लांट भी लगाएंगे। Every big and small thing, they will take good care of everything, ताकि जो गवर्नेंस का मैक्सिमम बेनिफिट है या फिर दुनिया भर में जिस लेवल पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है उसका मैक्सिमम बेनिफिट मैक्सिमम लोगों को मिल सके। अब इसके लिए जरूरी क्या है, हाउ द गवर्नमेंट विल डू इट। सो फर्स्टली इसको ध्यान से समझते जाना। फर्स्टली द गवर्नमेंट स्टार्टेड डेलीगेटिंग इट्स पावर टू द स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज के लिए उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड क्रिएटिंग सर्टेन ऑटोनोमस बॉडीज। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी क्रिएट कर दी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्रिएट कर दिए, LIC क्रिएट कर दिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी क्रिएट कर दिया, हाईवे अथॉरिटी क्रिएट कर दिया। सो दे हैव क्रिएटेड सर्टेन स्टैट्यूटरी बॉडीज। एक मिनट फिर से बता दीजिए। हाँ क्या क्या फिर से सवाल पूछो अपना। तो फर्स्टली व्हाट दे हैव क्रिएटेड स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज मींस through the statute means a legislation passed by the competent legislature. They created certain statutory bodies, like Delhi University has been created through an act. So Delhi University is autonomous statutory body. आपका LIC स्टेच्यूटरी बॉडी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी स्टेच्यूटरी बॉडी है, आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी आपकी स्टेच्यूटरी बॉडी है। तो स्टेच्यूटरी बॉडी को क्रिएट करने का क्या मतलब था, बिकॉज द concept of state is expanding, welfare state is expanding, and the ministries independently are not able to perform every duty, so they started creating autonomous body. तो autonomous के bodies को create करके अपनी power को delegate कर दिया। नेक्स्ट इसमें इन्होंने क्या किया, इसको जरा सुनते जाना मुझे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो रहा है, now the role of the state is multiplying. So what they find it difficult to create a statutory body for every purpose. So what they started doing, they started creating bodies within the existing legislation. Within the existing legislation का मतलब क्या होता है, within the existing legislation का मतलब ही होता है कि suppose करो there is a company act. We all know that there is a companies act. I can register a company under that companies act. You can also register a company under the Companies Act. But now what government started doing, even the government started registering government companies under the existing Companies Act. Similarly, there is a तुम्हारा ये होता है ना सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। सपोज तुम किसी सोसाइटी को रजिस्टर कराना चाहते हो, किसी NGO को रजिस्टर कराना चाहते हो, यू विल गो देयर, you will fulfill the formalities and you will create a society. Now the government has also started creating societies like Uttar Pradesh Ganna Kisan Sansthan. It is a society registered under the Societies Registration Act. या तुम्हारा जैसे BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो अब क्या हो रहा है, अब तुम लोगों ने देखा कि स्टेट का मॉडल चेंज होता जा रहा है। तो ये मॉडल चेंज क्यों हो रहा है और आगे इसमें चेंजेस कैसे होंगे और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसको जरा समझना। When the India got independence, there was a big, question
that what should be the developmental model of India. मैंने तुम लोग को अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि गांधी हैज अ एंटायरली डिफरेंट थॉट अबाउट द डेवलपमेंटल मॉडल. और अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा या तुमको पता होगा तो तुमको मालूम होगा देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट between Pandit Jawaharlal Nehru and Mahatma Gandhi. And what is the main reason of conflict? The main reason of conflict is Gandhi ji is talking about Gram Swaraj, while Nehru ji, he is more into the favor of the इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में वो ज्यादा है. लेकिन गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं नहीं, ग्राम स्वराज की बात करते हैं वो. ग्राम स्वराज का एक चीज और याद रखना, ग्राम स्वराज का मॉडल वाज नॉट द कंप्लीटली ओरिजिनल थॉट ऑफ गांधी. इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम अर्थशास्त्र एंड इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज एंड टेक्स्ट एंड द मैकेनिज्म विच वाज ऑलरेडी प्रिवेलिंग इन इंडिया. जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि वो विल डुरांट लिखता है या इंग्लिश मेडिसिन लिखता है कि 1498 तक इंडिया का ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 66% है. देन रिमेंबर दिस 66% इज नॉट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिटीज. This 66% was the contribution was of the entire India, especially village and cities both. लेकिन post independence Nehru ji is more into the favor of the heavy industrialization, while Gandhi ji is talking about the Gram Swaraj. इसीलिए मैंने तुम लोग को एक चीज बताई थी कि once you read the Constituent Assembly debate, you will not get even a single sentence or single quote which is talking about the idea of Gandhi. कहीं नहीं है, तुम लोग पूरा पढ़ डालो. और मैंने तुम लोग को ये भी बताया था कि गांधी जी वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एक प्रोविजन जो बड़ी मुश्किल से गांधी जी का कॉन्स्टिट्यूशन में आया है एंड दैट वाज पुट बाय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, और वो है तुम्हारा ग्राम पंचायत. आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 40. That is the only provision which has been put in the constitution to implement the idea, to give some respect to the idea of Mahatma Gandhi, and that is article 40. अब जरा इसको ध्यान से समझना कि ये चीजें कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं. नेहरू जी आते हैं, नेहरू जी का था हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन्होंने काफी सारी चीजें भी करी, अनडाउटेडली करी. उसके बाद देखिए हम लोगों ने कई सारे वॉर देखे. पाकिस्तान के साथ कॉन्स्टेंटली वी वर इनटू कॉन्फ्लिक्ट. वी वर इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना. चाइना से कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे. फिर पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के साथ तो लगातार, और चाइना के साथ लगातार डिस्टर्बेंसेस गोइंग ऑन. यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमारा पाकिस्तान और चाइना के साथ वॉर हुआ, और जब आपके हमारे शास्त्री जी आते हैं, तो फिर अब आप देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एकाएक हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करने लगते हैं. हम, क्योंकि आप लोगों को याद होगा, या याद तो क्या होगा, पता होगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने वॉर के टाइम पे ये बोला कि अब भारत का हर व्यक्ति सिर्फ एक टाइम खाना खाएगा, तब जाकर के, क्योंकि अमेरिका सेड कि वी आर नॉट गोइंग टू सप्लाई यू व्हीट, हम गेहूं नहीं देंगे तुमको, तो हमारे पास इतना अनाज नहीं था कि हम पूरी आबादी को खिला सकते. उस समय उन्होंने बोला कि हर भारतीय सिर्फ एक टाइम खाना खाएगा. एंड इट वाज अ ग्रेट थिंग दैट हाउ वी यूनाइटेड इन द एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस. भारत का बच्चा भी सिर्फ एक टाइम खाना खाता था. बट दैट गेव एन इंडिकेशन दैट इफ यू वांट टू फाइट और इफ यू वांट टू बी स्ट्रांग, देन वी शुड बी इंडिपेंडेंट इन द टर्म्स ऑफ फूड स्टफ्स. ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इंदिरा जी आई. इंदिरा गांधी ने सोशलिज्म पे सबसे ज्यादा अगर काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है, सो दैट इज मिसेस इंदिरा गांधी. उन्होंने कुछ बड़े मेजर रिफॉर्म किए, जिसमें उनके दो रिफॉर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट इज द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, और दूसरा उन्होंने एक काम किया, जो उन्होंने किया, गरीबी हटाओ, ये नारा इंदिरा जी ने दिया था. गरीबी हटाओ ये नारा इंदिरा जी ने दिया था. एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस, ये मिसेस गांधी ने किया. प्रीवी पर्सेस का क्या मतलब है एबॉलिशन का, इसको भी हम लोग देखेंगे. हमारे यहाँ पे जब आप इकोनॉमी की बात करते हो तो आपको पता है पहले राजे रजवाड़े होते थे, और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे, हमें टाइम मिलेगा तो, हमारे पुराने समय में और आज भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का सेंटर टेम्पल्स होते थे. अभी आपने पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में सुना है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि ये मंदिरों का जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन था, या मंदिरों में चढ़ावा क्यों चढ़ाया जाता था, और ये मंदिर जो है ये गांव की इकोनॉमी के सेंटर कैसे होते थे. लेकिन अभी इस पर डिस्कस मैं नहीं करूंगी.
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने देखा मिसेस गांधी आई, मिसेस गांधी हैज, तो हाँ, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस। तो आपको मालूम है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ये जितनी रियासतें थी ये विलय हो गया इनका रियासतों का, और सरकारों ने राजाओं को, यानी जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंस होते थे, उनको ये बोला कि आपकी प्रॉपर्टी के एवज में वी विल गिव यू सर्टेन अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। दिस यूज्ड टू बी नोन एज द प्रीवी पर्सेस, बट दिस वॉज एबॉलिस्ड बाय मिसेस गांधी। उन्होंने बोला नहीं, कोई राजे रजवाड़े को कोई भी पेंशन भारत सरकार नहीं देगी, एंड शी पास्ड द लेजिस्लेशन व्हिच इज नोन एज द एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस एक्ट। अब यहाँ पे हम सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। नेहरू जी ने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी, शास्त्री जी के टाइम तक हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करने लगे, मिसेस गांधी के टाइम तक हम गरीबी हटाओ की बात करने लगे, सोशलिज्म की तरफ बढ़ने लगे। व्हेन राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ही रियलाइज, क्योंकि दुनिया में चेंजेस दिखने लगे थे और उनको ये लगने लगा कि अगर वी कैन नॉट कीप आवरसेल्फ सेपरेट फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फिर से जोर देना शुरू किया। एंड इन द रिमेंबर what is the biggest reason of the failure of the mechanism of socialism? Everything was under the control of the government. So what started happening? This red tapeism, high level of corruption, it started creating a huge problem in the development of India. आपका हर चीज पे आपका परमिट राज था, कोटा राज था, जिसको लाइसेंस कहते हैं, वो व्यवस्था थी, और जम करके व्यवस्था में करप्शन हो रहा था। तो करप्शन को आपने सुना होगा कि राजीव गांधी ने ही बोला था कि 100 पैसा यानी 1 रुपया चलता है और नीचे तक आते आते वो 15 पैसे रह जाता है, यानी 85 पैसे बीच में खा लिए जाते हैं। दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर राजीव गांधी। उन्होंने काम अच्छा किया, उन्होंने सबसे पहले डी लाइसेंसिंग शुरू करी, उन्होंने कोटा राज और परमिट राज को डाइल्यूट करना शुरू किया, एंड द बेसिक पर्पस वाज टू गिव अ पुश टू द इंडस्ट्रियल ग्रोथ या प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ मिले, उसके लिए उन्होंने एक पुश करना शुरू किया। व्हाट हैपेंड सब्सिक्वेंटली, 91 तक, 92 में WTO आ गया था 91 में, और WTO इज अ न्यू पैकेजिंग ऑफ गैट। उस पर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि थोड़ा डिरेल हो जाएगा, पर गैट का ही रिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर जो है वो WTO है। इंडिया साइंड ओवर दिस WTO इन द ईयर 1992। तो 1991-92 से PV नरसिम्हा राव जी आते हैं और उन्होंने एक लिबरलाइजेशन शुरू किया। ये जो लिबरलाइजेशन की बात होती है, इसमें कई सारे फेजेस हैं। इसमें जब तुम लोग लॉ भी पढ़ोगे तो तुमको ये चीज समझ में आएगी। इसके कई लेवल ऑफ रिफॉर्म्स थे। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो मैं तुम लोग को बताती हूँ। इंडिया 91 के बाद इंडिया को मजबूरी थी कि इंडिया स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड व्हाट वाज द रीजन? One of the most important reason was the disintegration of USSR. You know that India and USSR, they are very old time friends, बहुत पुराने दोस्त हैं, और रशिया हमेशा इंडिया के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन and there was a cold war which was always going on between Russia and America. इनके बीच हमेशा ही चलता रहता था, और कौन ज्यादा पावरफुल बनेगा और कौन इस दुनिया को कंट्रोल करेगा, दैट वाज द मेन रीजन ऑफ दिस टसल। बट इन द ईयर 1991 व्हेन द USSR गॉट disintegrated, now there is only one power and that is United States of America. तो यूएसए को क्या लगा कि हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं है, आसपास भी कोई नहीं है। यूएसए को झटका तब लगा था जब आपका 9/11 हुआ था, क्योंकि उस समय यूएसए को पहली बार रियलाइज हुआ कि कोई यूएसए की शक्ति या पावर को भी चुनौती दे सकता है। तो आपका 91 के बाद जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन किया आफ्टर बीइंग द पार्ट ऑफ द WTO, so there was a political shift in the policies of the government of India also, and that shift was towards the United States of America. United States of America की खास बात क्या है? They believe in consumerism. इन्होंने लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया, मैं आपको इसको बताती हूँ कि कैसे इन लोगों ने इस चीज को फ्लोट किया। इन्होंने ये बोला, and this was the concept which was given by US. इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि हम we will create a global village. ग्लोबल विलेज का मतलब होता है देयर शुड नॉट बी एनी बैरियर। मैंने तुम लोग को बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से इन्होंने बोला कि दुनिया में जो ट्रेड की करेंसी होगी वो डॉलर होगी,
और किसी भी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है घटी है, दैट विल बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ डॉलर। अब यहाँ पे इसका मतलब अमेरिका वाज स्टार्टेड बिकमिंग द सेंटर ऑफ द इकोनॉमी, और अमेरिका में टेक्नोलॉजी पे काफी काम हुआ, अमेरिका आगे बढ़ा। और अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका इज सच अ बिग कंट्री, दे हैव unlimited capacity to produce the things, but they don't have market to sell their product. Again the same kind of economic colonization जिसकी मैं बात कर रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। And what is the concept? The concept is we will convert entire world into a form of the village where there should not be any kind of trade barriers. ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए, नाइदर डायरेक्ट ट्रेड बैरियर्स नॉर इनडायरेक्ट ट्रेड बैरियर्स। और इसको ये एग्जीक्यूट किसके थ्रू करवाने लगा, ये WTO के थ्रू करवा रहा था, जिसमें इवन यूएस वाज डोमिनेटिंग। तो इनका मॉडल क्या है, इन्होंने क्या किया, ये नेसेसिटी से कंज्यूमरिज्म पे आए। और कंज्यूमरिज्म पे आने का मतलब क्या है कि मार्केट आप अपनी खोलो, अपने प्रोडक्ट हम आपकी मार्केट में पंप करेंगे, और पंप करने के बाद आपके लोग इन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। सो अगर आप लोगों ने एक नाम सुना हो जगदीश भगवती का, Jagdish Bhagwati is an American professor of Indian origin. He came to India, and at that point of time, Narasimha Rao ji was the prime minister and Manmohan Singh ji was the finance minister. तो उन्होंने बोला कि आप अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं खोलते, लोगों के खर्चे करने की कैपेसिटी को बढ़ाओ। और उनको यहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट क्यों नजर आ रहा है, बिकॉज इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन। अब उनकी आप स्ट्रेटेजी देखो, बिकॉज वी डोंट रियलाइज दैट दीज थिंग्स हैपेंस। इंडिया आते हैं जगदीश भगवती, और इंडिया में आने के बाद उनको क्या पता चलता है कि इंडिया में कितनी फैमिलीज रहती हैं। सपोज करो मैंने बताया उस समय के हिसाब से 50 करोड़ फैमिलीज। अब 50 करोड़ या 40 करोड़ फैमिलीज हैं, तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उन्होंने पूछा यहाँ पे टीवी का कंजम्पशन कितना है, फ्रिज का कंजम्पशन कितना है, क्योंकि तब तक ये चीजें आ चुकी थी। अब किसी 40-50 करोड़ फैमिली में पता चला कि जो टीवी है वो तो मुश्किल से जो है ये 2-4 करोड़ है, ऐसी जो है फ्रिज है। तो उन्होंने पूछा जब फैमिलीज इतनी सारी हैं तो फिर इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कंजम्पशन इतना कम क्यों है। तो यहाँ पे उनको बताया गया यहाँ पे ज्वाइंट फैमिलीज है। ज्वाइंट फैमिलीज का मतलब होता है कि 25 लोग 20 लोग सब लोग एक साथ ही टीवी देखते हैं, या एक घर में रहते हैं तो एक फ्रिज के पानी को यूज करते हैं। तो उनके दिमाग में मार्केट की पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि जब तक एक एक फैमिली की अपनी अपनी टीवी या फ्रिज नहीं होगी तब तक हमारा मार्केट कैसे ग्रो करेगा। तो उसी समय आप देखोगे अगर ना, जब टेलीविजन का रेवोल्यूशन आया तो वहां से इस चीज को सबसे पहले प्रोजेक्ट करना शुरू किया गया। एक रीजन तो ये था कि न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आप जाओ, और दूसरा रीजन ये था कि पूरे देश का इक्वल डेवलपमेंट ना होने के कारण द पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग। जब माइग्रेट करने लगे तो उनकी जो ज्वाइंट फैमिली थी वो कॉन्सेप्ट पीछे छूट गया, और हम धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हुए, और अब तो न्यूक्लियर से भी न्यूक्लियर सिंगल होते जा रहे हैं। दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन। तो तुम में से जितने भी हो अपनी शादी वादी जरूर करना, ये मत करना कि शादी नहीं करना, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन कॉज अ ह्यूज डैमेज। और ये आगे आने वाले 10 साल में इसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा, या मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ, और बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट होगा उसका। उन्होंने दूसरी चीज क्या बोली, उन्होंने दूसरी चीज ये बोली कि वाई, बिकॉज यू नो इंडियन हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी टू सेव मनी। फालतू का खर्चा यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, हम लोगों से कम हमारी मम्मी पापा करते थे, उससे भी कम हमारे दादा दादी करते थे। और अगर आप इंडिया का मॉडल देखोगे तो यहाँ किसी चीज को खराब करते ही नहीं थे, अब हम लोग करने लगे हैं। कपड़े को भी जब तक घिस के खत्म नहीं कर देंगे तब तक उसको यूज करेंगे। उसका रीजन ये नहीं था कि हम कंजूस थे, क्योंकि वी आर द मोस्ट इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस कंट्री। हमारा मेन फंडा हमें बचपन से ही सिखाया जाता था कि किसी चीज को वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे अमेरिका ने क्या सिखाया कि भाई आप लोगों को इनकरेज करो कि वो अपना खर्चा बढ़ाएं। अब खर्चा बढ़ाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? देन दे सेड कि यू ओपन अप योर फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक्स को आप प्राइवेट बैंक्स को आप अलाउ करो, और आप अपने लोगों को एक्सपेंसेस के लिए इनकरेज करो। तो एक नई चीज उन लोगों ने है, ये अमेरिका का एक कॉन्सेप्ट था, उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, विच इज नोन एज प्लास्टिक मनी, जिसको कि आप क्रेडिट कार्ड कहते हो। और क्रेडिट कार्ड के दम पे लोगों के एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज हम खर्चा तो करेंगे लेकिन प्रोडक्ट किसका खरीदेंगे? अमेरिका सेट कि प्रोडक्ट हमारा होगा, मार्केट आपका होगा।
पैसा आपका होगा, वहां से नया मॉडल शुरू होता है जिसको कि अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं। और अब हमारी मजबूरी भी है, इसकी कुछ अच्छाइयां भी हैं और इसकी कुछ बुराइयां भी हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सब कुछ बुरा है, लेकिन हम कहाँ पे आ गए, हम एक नीड से हम आ गए ग्रीड पे, हम कंज्यूमरिज्म पे आ गए। जहां पे पहले हम अगर 2 लाख की कार खरीदते थे तो फिर हम 8 लाख की कार खरीदने लगे, फिर 18 लाख की। सो दे हैव क्रिएटेड एन एंडलेस कंपटीशन। सो इफ इट हैज इट्स ओन निगेटिव एस्पेक्ट जिसको कि अभी हम देख रहे हैं। लेकिन मेरा बेसिकली आपको क्या कहना यहाँ पे है, मेरा कहना ये है कि ये जैसे जैसे हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम ग्रो करते गए पोस्ट लिबरलाइजेशन, हमने क्या किया, स्टेज वाइज अपने को रिफॉर्म किया। एंड बिकॉज वी आर रिफॉर्मिंग आवर सेल्फ स्टेज वाइज, सो द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो चेंजिंग स्टेप वाइज। जैसे पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, हमने डी लाइसेंसिंग करी इंडस्ट्रियल सेक्टर की। कंपलसरी लाइसेंसिंग जो थी उसको कुछ सेक्टर्स तक सीमित करके हमने मैक्सिमम सेक्टर्स की डी लाइसेंसिंग कर दी, ताकि लोगों को नई इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने में देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया, एक स्टेप और आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके क्या किया, फुल फ्लेजेड प्राइवेटाइजेशन एंड चेंजेस इन लेबर लॉज। चेंजेस इन लेबर लॉज क्यों आया, चेंजेस इन लेबर लॉज इसमें आप लोग इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस थी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे वर वेरी पावरफुल। और पावरफुल देखिए, इंडिया में इंडस्ट्री जो ग्रो नहीं करी उसका एक मेन रीजन यहाँ पे ट्रेड यूनियंस थी, क्योंकि वो रोज तालाबंदी करती थी वो रोज हड़ताल करती थी। तो उसका रिजल्ट क्या होता था, कंपनीज इतना घाटे में जाने लगी कि उन्होंने डिसाइड किया कि इट्स बेटर टू क्लोज। तो यहाँ पे जो सेकेंड लेवल था उसमें लॉ, अभी भी अगर आप थर्ड लेवल या फोर्थ फेज की अगर आप बात करो तो फिर से लेबर रिफॉर्म की बात हो रही है। क्योंकि जैसे अभी आप देखो, आपका हरियाणा में जो मारुति का प्लांट है, या इसके पहले भी अभी ज्यादा समय नहीं 2-3 साल पहले इन प्लांट्स में वायलेंस कराया गया, यूनियंस ने कराया और प्लांट्स बंद हो गए। तो ये जो प्लांट्स बंद हुए डायरेक्टली दैट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इसीलिए जो स्टेप 2 का रिफॉर्म था वो फुल फ्लेजेड प्राइवेटाइजेशन एंड चेंजेस इन लेबर लॉस का रिफॉर्म था। इसके बाद इसीलिए आप देखोगे कि इंडिया में कंप्यूटर सेक्टर्स यानी सॉफ्टवेयर में ज्यादा राइज हुआ। क्यों? क्योंकि जहां पे आपकी मशीन नहीं है वहां पे ट्रेड यूनियन की कोई जरूरत नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर का काम कंपैरेटिवली कंफर्टेबल होता है। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजों पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया गया, सॉफ्टवेयर पे ज्यादा जोर दिया गया। जहां पे आपकी हैवी इंडस्ट्रीज थी उसके लिए लोग रिलेक्टेंट हो गए, और नहीं तो वो चले गए ऑटोमेशन पे। उन्होंने बोला हम 10 मजदूर की जगह हम एक मशीन रख लेंगे, लेकिन हम आदमी से काम नहीं कराएंगे क्योंकि मशीन कम से कम हड़ताल तो नहीं करती है। सो देयर इज अ चैलेंज बिफोर द गवर्नमेंट, बिकॉज द फॉरेन कंपनीज स्टार्टेड सेइंग कि वी विल नॉट कम टू योर कंट्री, वी विल नॉट इन्वेस्ट हियर, बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट हियर बिकॉज ऑफ द ट्रेड यूनियंस वी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। तो फिर लेबर लॉस के रिफॉर्म की बात हुई। जो स्टेप 3 है, ये जो है ये राइटफुल रोल ऑफ, अब हम लगभग इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, वैसे तो हर लेवल पे चल रहे हैं लेकिन अभी हम इस लेवल पे हैं। राइटफुल रोल ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू इम्पोज पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, टू इंप्रूव पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें एक चीज देखना, राइटफुल रोल ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो राइटफुल रोल ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का मतलब सबसे पहले ये होता है कि यू विल रिड्यूस और मिनिमाइज द ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। इसीलिए आप तुम लोग देखोगे कि आजकल हर स्टेट अपने यहाँ पे क्या करता है, वो कहता है कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। जैसे पहले सबसे पहले चलिए शुरू हुआ था गुजरात से, जब वहां पे एक कॉन्सेप्ट लागू किया गया वाइब्रेंट गुजरात, फिर गुजरात से महाराष्ट्र में आया, फिर ये तमिलनाडु कर्नाटका इन स्टेट्स में आया जो डेवलप्ड थे। अब अगर आप देखोगे तो जो बीमारू स्टेट हैं, जो कि निकल चुके हैं बीमारू से मैक्सिमम स्टेट, आपका मध्य प्रदेश भी करता है, आपका उत्तर प्रदेश भी करता है, आपका झारखंड भी करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है। ये स्टेट्स भी अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए इस कुछ प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करते हो। तो इसको लाने करने का पर्पस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जो यहाँ पे बात हो रही है, इसका मतलब है कि देयर इज मिनिमम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। इसीलिए आप देखो गुजरात जैसी स्टेट में कहते हैं हम 1 विंडो क्लियरेंस देंगे। अभी आपके कुछ और स्टेट यूपी मध्य प्रदेश ये सब भी 1 विंडो क्लियरेंस की बात करने लगे। 1 विंडो क्लियरेंस का मतलब क्या है, आप यहाँ पे अपने पेपर सारे सबमिट करो, आपको 10 जगह अलग अलग जगह नहीं दौड़ना और इतने समय में आपको आपकी फाइल क्लियर मिलेगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का मतलब होता है टू मिनिमाइज द रोल ऑफ अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट मशीनरी। और दूसरा जो होता है राइटफुल रोल ऑफ स्टेट में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। The first thing is the infrastructure.
एंड द सेकेंड थिंग इज लॉ एंड ऑर्डर। तो इसीलिए अब आप देखोगे तो स्टेट क्या कर रहा है ना, स्टेट अपने रोल को श्रिंक कर रहा है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे वांट टू परफॉर्म थ्रू द प्राइवेट पार्टीज या जो प्राइवेट बॉडीज होती हैं। स्टेट क्या करता है, आप हमारे यहाँ पे आओ, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक आपने देखा होगा जैसे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा इशू था, तो कोई इन्वेस्टर यहाँ नहीं आना चाहता। अगर आप इन्वेस्टर को बुलाना चाहते हो तो आप सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सही करोगे। तो अभी जैसे यहाँ की इस समय की जो सरकार है उसका बड़ा जोर है कि लॉ एंड ऑर्डर सही हो। या इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप देखोगे तो अभी भी काफी सारे प्रोजेक्ट, काफी अच्छा काम किया इन लोगों ने स्पेशली हाईवेज को लेकर के, लेकिन काफी जो बल्क में इन्वेस्टमेंट है। आप देखो अभी इनका जो नया प्लान आ रहा है, नया प्लान है इस गवर्नमेंट का, 12 घंटे में दिल्ली टू मुंबई और 6 घंटे में दिल्ली टू श्रीनगर आप जाओगे। नए हाईवेज नए हाईवेज बन रहे हैं। तो बेसिक पर्पस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन को अगर आप ढंग से करोगे तो फिर आपका जो डेवलपमेंट होता है उसकी पेस जो है वो काफी फास्ट हो जाती है। तो ये 4th जनरेशन है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये जो मॉडल, मेरा व्हाई बेसिकली आई हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स टू ऑल ऑफ यू, द बेसिक रीजन इज हाउ द गवर्नमेंट इज शिफ्टिंग फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट पावर टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और इसीलिए अब आप देखोगे कि जो इसका कोविड के बाद आपका जो आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया चला है, सेल्फ रिलायंट इंडिया इज बेसिकली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गांधीयन थॉट्स, या जिसको आपके दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं या चाणक्य का अर्थशास्त्र कहता है। और इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, बेसिक फंडामेंटल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गांव की नीड गांव से पूरी होनी चाहिए। यानी जितना कंजम्पशन गांव में है वो प्रोडक्शन गांव में होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज, अगर गांव की नीड गांव से नहीं पूरी हो रही तो शहर से पूरी होगी, शहर से नहीं पूरी हो रही है तो आपके स्टेट से पूरी होगी, स्टेट से नहीं पूरी हो रही है तो इसी देश के किसी और स्टेट से पूरी होगी। जब देश में कहीं नहीं पूरी होगी तब आप उसको इंपोर्ट करोगे। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। दैट्स व्हाई इन दिस मॉडल ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया जिस पर अभी बात चल रही है, इसमें दे आर पुशिंग अ लॉट एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप अपने एरिया में जिस चीज को लेकर के कंफर्टेबिलिटी है जो वहां पे हो सकती है, आप एम्प्लॉय मत बनो, आप एम्प्लॉयर बनो। दिस इज द एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि गांव की प्रॉस्पेरिटी को और गांव के लोगों को रिटेन करना। आप बाहर मत जाओ कि आप बाहर अपने गांव से बाहर निकलो, आप अपने शहर से बाहर निकलो, आप अपने एरिया में अपनी मार्केट को डेवलप करो, अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल से लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दो और वहां की नीड को लोकल प्रोडक्शन से पूरा करो। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट है गांधी के थॉट से बहुत ज्यादा मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज में मैंने जो आपको बताई, इसमें ये आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है कि व्हाई देयर इज a pressure on the definition of state। पहले मैंने आप लोग को बताया कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक हर चीज सरकार करती थी। नरसिम्हा राव से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ तो प्राइवेटाइजेशन में आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज या रजिस्टर्ड बॉडीज क्रिएट होना शुरू हुई। अब जो हम 4th स्टेज ऑफ लिबरलाइजेशन में हैं, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी डन बाय द प्राइवेट पार्टीज। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, इफ ऑल द function of the governance is going to be performed by the private bodies, then whether the private bodies should also be considered as state under Article 12, means can we say that is it right time to expand the definition of the state? Otherwise, if most of the welfare functions are going to be performed by the private parties and private parties are violating our fundamental right, then no remedy can be available under Article 32, because we say that remedy under Article 32 is available only when the state is violator. So can we say that is it high time to expand the definition of the state? और अगर ये definition expand होती है तो इसको कैसे expand होना चाहिए, इसके बारे में भी हम discussion करेंगे. So this is all for today from my side.